Tamasha. So I don't need to tell too much about this movie. Everyone knows this movie. Everyone loves this movie. When it was released, it was a flop at the box office. But today, after 10 to 11 years of its release, it has a cult following. It's a cult classic. It's considered one of the best works of Imtiaz Ali. This movie teaches us to dream. This movie teaches us to throw aside those societal expectations, the societal pressures, and follow your own dreams. It teaches about self discovery, self belief, and to chase your dreams no matter what. So everyone loves this movie. It has a great following, but if we keep all of this aside, there are some downsides to it. So we will talk about those later in this video. First, let us know a little bit about the gist of the movie. So all of you are completely aware of this story, I guess. So the story follows Ved, a person who is completely obsessed with stories and storytelling from his childhood. But when he grows up, he ends up in a corporate setting, which he hates a lot. Then, in a vacation in Corsica, he meets a girl named Tara. They become good friends, they enjoy a lot with each other, and finally, they both fall in love. Then, after a few years, back in India, when they both meet, Tara is completely surprised to see a version of Ved whom she doesn't know. A person who is so unhinged, carefree, and playful has completely transformed into a proper corporate Mazdoor who always talks about finances, fancy restaurants, and money. Unable to bear all of this, Tara finally breaks up with Ved, and this frustrates him so much that he snaps so hard that he is terminated from his corporate job. He then confronts his father and finds the courage to follow his passion further. And finally, they both end up together and a happy ending. So, now the downsides. See, the movie is great, the direction is great, acting, cinematography, set design, everything is great. But there are a few problems with it. First and foremost, the first half of the movie. It feels too much chaotic. So we start with this cringe as hell play, and then we go to Ved's childhood in Shimla, and directly from there we move to Ved's vacation in Corsica. एंड जहाँ पे ये वेद और तारा क्या कर रहे हैं आधे घंटे तक, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी. इसके बाद द सेकेंड हाफ इज गुड, एवरीथिंग इज इन फ्लो, इट फील्स रियली गुड. That's perfect. Second half is completely perfect. The second is the dialogues at some places feel quite cringy according to the tone of the movie. For example, starting का ये play वाला scene, the dialogues in this play are quite cringy. कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इतनी जोर से आता है कि पैंट में ही हो जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो फिर दिमाग में क्या आता है? इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ पे वेद गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड स्नैप्स एट दिस गाय, द डायलॉग्स आर रिटन इन सच अ वे इट फील्स क्रिंजी रादर देन फ्रस्ट्रेशन. वो फील नहीं आता, वो रिएक्शन डजंट कन्वे हिज फ्रस्ट्रेशन, इट फील्स वेरी क्रिंजी. एक्चुअली जब से मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना, तब से मुझे शक है कि उसे पानी लीक हो रहा है और मेरे अंतड़ियों के अंदर इधर उधर फंगस लग रही है सब जगह. और स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम से हिंदी में आई डोंट नो. अगर इसके कंपैरिजन में इफ यू सी रॉकस्टार का ये वाला सीन वेयर जॉर्डन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज फैंस, द डायलॉग्स आर वेरी लेस, but the reaction is so genuine. It feels that he's completely frustrated. और किसी ने खिंचानी है फोटो? और पिक नहीं लेनी? हो गया काम तुम सबका? हाँ? जाऊं मैं? And finally, वेद का ये confrontation वाला scene. This scene doesn't hit so hard. वो जो वेट फील होना चाहिए इस सीन का, वो इमोशनल वेट फील ही नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंपेयर दिस सीन विद फरहान का कन्फ्रंटेशन वाला सीन फ्रॉम 3 Idiots, दैट सीन हिट सो हार्ड, वो हमें इमोशनल लगता है. वी सी कि वो अपने पापा को बोल रहा है कि उसे अपना पैशन फॉलो करना है क्योंकि उससे कुछ नहीं हो रहा. जिस फील्ड में उसके पापा उसे जाने को कह रहे हैं, उस फील्ड में वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है. ही इज़ कम्प्लीटली फेलिंग देयर. इसी वजह से वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है क्योंकि ही इज़ गुड इन दैट फील्ड, और वो अगर उस फील्ड में आगे जाएगा तो ही वुड डू बेटर. बिकॉज और मे भी हो सकता है कि ये सीन इतना हिट करता है क्योंकि हम स्टार्टिंग से उसके फेलियर्स, उसके जो स्ट्रगल्स हैं हम देख पा रहे हैं कि
उसके नाम पे कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, ही इज़ फेलिंग हिज सब्जेक्ट्स, ही इज़ नॉट एबल टू गेट अ जॉब. इसी वजह से ही इज़ स्नैपिंग एंड ही इज़ लाइक confronting his father. But यहाँ पे if you compare with Ved, he's in a much better situation. Like वो अपने कॉर्पोरेट में है, अच्छा खासा कमा रहा है, महीने का 15-20 लाख, फॉरेन घूमने जा रहा है, फैंसी रेस्टोरेंट्स में खा रहा है, अच्छा खासा नाम है उसको कॉर्पोरेट में. जस्ट द थिंग इज़ दैट ही इज़ नॉट एबल टू फॉलो हिज पैशन. और ये फील उतना वेट वाला फील नहीं होता है, मे बी बिकॉज हमें उसके पैशन के बारे में उतना हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं. स्टार्टिंग में बचपन में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है एंड देन वी सी इट टुवर्ड्स द एंड. वो जो कंटिन्यूस हमें वो पैशन के लिए उसका स्ट्रगल वो ही नहीं दिखता है. मे बी इसी वजह से वो वेट फील नहीं होता इस सीन में, बट दैट इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन एंड दिस सीन डजंट वर्क फॉर मी दैट वेल. So if you keep all of this aside, the movie is great. Everything is perfect. It feels like a damn good painting, especially the visual storytelling. For example, वेद का ये vacation Corsica में. So Corsica is not just a place. It's now a part of France, but it's been ruled by multiple empires like the Romans, Genoas, Byzantines, and many other. So इसी वजह से over the time, Corsica somewhere lost its own identity, just like Ved, who under societal expectation has lost his own identity, has forgotten his own passion. And then जब Tara tells Ved about Asterix in Corsica, this sums up the entire movie. So the story goes like Asterix helps a Corsican warrior to break out of prison who has been imprisoned by the Romans and help him liberate Corsica from the Romans. Similarly, movie में भी Tara helps Ved to liberate himself from the societal expectations and follow his true passion. So next is this part where Ved is reading this novel Catch 22. So इसका भी एक special reference है. तो World War II के time US Air Force में there was a rule called Catch 22. तो according to this rule, अगर कोई पायलट खुद से extremely risky missions पे जाना चूज करता है, this means वो पागल हो चुका है और उसे एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा. बट वहीं पे अगर वो पायलट खुद जाके बोले कि मुझे इन रिस्की मिशंस पे नहीं जाना है, तो उसे नहीं निकाला जाएगा. बिकॉज अगर वो बोलता है दिस मीन्स ही इज़ कम्प्लीटली फाइन और उसे इन मिशंस पे जाना पड़ेगा. तो चाहे जो भी करो, यू विल हैव टू कीप गोइंग ऑन दिस रिस्की मिशंस. सो इट्स अ लॉजिकल पैराडॉक्स विद अ नो विन सिनेरियो. तो अगर हम इस मूवी में देखें तो वेद का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है. ही इज़ नॉट एबल टू क्विट हिज जॉब एंड फॉलो हिज पैशन, क्योंकि सोसाइटी और उसके फादर के एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर. और अगर वो अपना जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो करेगा तो उसके फादर और उसका सोसाइटी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगेन अ नो विन सिनेरियो. तो अब आता है तुम साथ हो वाला पार्ट. तो इस गाने का पूरा पिक्चराइजेशन ही एक मेटाफर है. फॉर एग्जाम्पल, तारा पहनती है रेड, वेद पहनता है ग्रे. तारा सिम्बलाइजेज हार्ट, वेद सिम्बलाइजेज ब्रेन. सो उस कैफे से निकल के वेद गोज थ्रू दिस एलीज विथ रेड लाइटिंग एंड देन एंड्स अप इन अ प्लेस वेयर द वॉल्स आर ग्रेइश. लाइक वो एक अननोन टेरिटरी, एक अनसेटलिंग टेरिटरी से निकल के एक जगह आया है विच इज़ हिज सेफ स्पेस. एंड देन वी सी तारा who comes through these alleys, and then when she reaches this place with grayish walls, she falls to her knees. This symbolizes कि हार्ट फाइनली अपने खुद के टेरिटरी से एक अननोन टेरिटरी में आके फाइनली ब्रेन के आगे हार चुका है. हार्ट हैज़ गिवन अप अगेंस्ट ब्रेन. एंड देन इस मूवी के फाइनल सीन में वी सी वेद वेयरिंग अ रेड बैंडेना. दिस शोज दैट ही इज नाउ फॉलोइंग हिज हार्ट. His heart has taken over, his heart has won against brain. He is doing what he truly loves, not what he needs to do. Then comes this scene जहाँ पे we see Tara through the window sill and it feels like she is in a prison. और जब भी वेद उससे मिल के निकलता है, वो अपना घड़ी देखता है जैसे कि एक कैदी से मिलने का टाइम खत्म हो चुका है और वो अपने घर जा रहा है. So Tara is free, she is independent, but at the same time she isn't. The person she loves the most now makes her feel like she is a prisoner. So this scene is inspired from Charulata, if you have seen it. And then comes color grading. Man, it's insane. So Corsica में जब दोनों एक साथ मिलते हैं,
दोस्त बनते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, दोनों के बीच में प्यार होना शुरू होता है. द कलर पैलेट इज वार्मर. द कलर्स आर वार्म एंड क्वाइट सैचुरेटेड विच शोज देयर हैप्पीनेस. इसके बाद द मोमेंट तारा सिट्स इन द कैब टू लीव फॉर इंडिया, कलर्स काफ़ी डल होना शुरू हो जाते हैं विच शोज हर सॉरो. सिमिलरली जब वेद कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता है, द सीन्स आर क्वाइट डल. उनमें कलर ही नहीं है, ऑलमोस्ट डल, अनसैचुरेटेड डल. बट जब भी वो कुछ ऐसा करता है विच ही एंजॉयज, द सीन चेंजेस टू वार्मर टोन्स. फॉर इंस्टेंस दिस वॉशरूम वाला सीन. देन अगेन जब वो ऑटो वाले के साथ जाके वो जगह पे कहानी सुनाना शुरू करता है, द कलर्स चेंज टू वार्मर टोन्स. और वहाँ पे बैकग्राउंड में भी द एरिया इज लिट विथ रेडिश लाइट्स. और वहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा ही जगह रेडिश लाइट से लिट है, कुछ कुछ लाइट्स ब्लूइश भी हैं, विच शोज अ टसल बिटवीन हिज पैशन एंड प्रोफेशन. और ये कंटिन्यू होता है जब भी वो ऑटो वाले के साथ जाके वहाँ पे स्टोरीज बताता है, तब भी यू विल सी इन द बैकग्राउंड रेडिश और ब्लू लाइट्स दोनों ही हैं. एंड फाइनली जब वो उसके फादर को कन्फ्रंट करता है और उसके बाद उस ऑटो वाले के साथ आके कहानी सुनाना शुरू करता है, देयर यू विल सी कि पीछे जितने भी बैकग्राउंड में लाइट्स रेड और ब्लू थे, अभी कंप्लीटली रेड में चेंज हो चुके हैं, विच शोज दैट ही हैज कंप्लीटली left away his profession and he is now following his passion. He is doing something which he loves from the bottom of his heart. And जब वो कहानी वाले बाबा से मिल के वापस आ रहा होता है, there you will see कि बहुत सारे सीन में कलरफुल एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ये औरतें, वो फूल वाला, उसके बाद ये क्लाउन्स, बहुत सारे कलरफुल एलिमेंट्स ऐड होते हैं. और जो सीन का जो कलर पैलेट है वो भी वार्मर टोन्स पे शिफ्ट होना शुरू होता है और टिल द एंड वार्मर टोन्स में ही रहता है. एंडिंग खराब है ना, एंडिंग सही नहीं. तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे.